Good morning, students. Welcome back to the online sessions of Science Class 9. I hope you and your family will be safe in this pandemic situation. So, just I requested to you stay home and stay safe. Don't go unnecessary outside your homes. Also, avoid to go into the crowded places. And if it should be necessary, you have to go outside your homes. Use properly face mask cover. Take sanitizer with you. Always be wash your hand as a specific time of interval up to 20 seconds. So, stay home and stay safe. Students, today we are discussing about the new chapter of NCERT syllabus, that is chapter number 12 is sound. So before we discussing, generally every day we hear the sounds from the various of sources like the humans, birds, machines, vehicles, bells, televisions, radio, etc. So sound is what? Sound is a form of energy which produces the sensations of hearing in your ears. There are also other forms of energy like mechanical energy, light energy, kinetic energy, etc. So we have talked about the mechanical energy in the previous chapter. Also we are discussing about the potential energy and kinetic energy also in the previous chapter. So you have to be discussing about the conservation of energy. You already have been discussing how the energy that can be conserved. So before we starting, first we moving on to the sound production, how the sound can be produced. So in this chapter we have discussing about the sound, how that can be implemented, what are the various methods, which kind of sounds that can be easily understood by the different objects. So in which first of all we have to be understand about the periodic motion, what is called periodic motion, and when or we say that okay, when it should be a periodic motion, हम कैसे कह सकते हैं कि periodic motion है. So उसका एक simple terms है periodic motion. If a body that repeat its motion within a very fixed time of interval along a very certain path is about a fixed point, then it is perform a periodic motion. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना मोशन को अगर रिपीट करता है एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स टाइम इंटरवल पे एक स्पेसिफिक पाथ पे एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट करके फिर से उस पॉइंट पे अगर रिपीट होता है तो उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन. See if a body that repeat its motion within a very fixed time of interval along a certain path having a very fixed point, then it is called as a periodic motion. तो आप उसको periodic motion कह सकते हैं. जैसे pendulum of a clock वो periodic motion है, a motion of earth around the sun वो periodic motion है, motion of moon around the earth वो भी periodic motion है, a motion of like garden swing moving and back and forth वो भी एक periodic motion है, motion of seesaw वो भी एक periodic motion है. तो that is called as a periodic motion. तो उसमें एक चीज हमें समझना है जिसको हम कहते हैं ऑस्किलेशन. एक वर्ड हमें समझना है जिसको हम कहते हैं ऑस्किलेशन. ऑस्किलेशन हम किसको कहते हैं? तो लाइक इफ अ बॉडी that repeat its motions back and forth or maybe to and fro, maybe to and fro and up and down, so this type of motions along a certain path about a fixed point having a very certain interval of time, so body is said to be oscillated and motion is said to be oscillated motion. तो इसको आप क्या कहेंगे? So the body is called as the oscillator. तो आप उसको oscillator कह सकते हैं. So oscillatory motion is a type of one of the periodic motion. Periodic motion का ये एक type होता है. So thus a body in a oscillatory motion is said to be a periodic motion, but not been reversed is not always true. It's not been always like a motion of pendulum back and forth, also weight of suspended on a string, motion of seesaw. This all having to be a oscillator. तो इसी में एक वर्ड हमें पढ़ना है जिसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको SHM कहा जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन is one of the part of the oscillatory motions of an object along a very linear path about a very fixed point. It is also called as an equilibrium point under the acceleration of a proportional to its displacement from its points like equilibrium point, so towards a fixed point, then it is called as a simple harmonic motion. चलिए इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ. लाइक टेक अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग लीजिए एंड इट्स वन एंड वर्टिकली विद द रिजिड सपोर्ट. इसके एक एंड को एक रिजिड सपोर्ट के साथ आप बांध दीजिए. टाई अ वेट अंडर द एंड ऑफ द स्प्रिंग. स्प्रिंग का जो एंड पोर्शन होगा वहां पे आप वेट वहां पे इंप्लीमेंटेशन कीजिए और उसको पुल कीजिए टुवर्ड्स डाउन साइड. द वेट अलोंग द स्प्रिंग
विल ऑलवेज भी परफॉर्म अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो क्या परफॉर्म करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करेगा। सो ईच एंड एवरी टाइम जो उसके अकॉर्डिंग टू उसका जो वेट होगा, उस वेट के अकॉर्डिंग टू जो स्प्रिंग होगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रेच होगा और उसके इंक्लूडेटली वो मूव करेगा। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से टाइप होता है। तो इसमें जो हमें अलग अलग टर्म्स आते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या बनता है, उसमें एम्पलीट्यूड क्या होता है, ऑस्किलेशन क्या है, पीरियोडिक टाइम क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें हमें समझनी होती है। तो पहला समझना है इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसको मीन पोजीशन कहा जाता है। द पॉइंट अबाउट द विच द सिंपल हार्मोनिक मोशंस परफॉर्म अ मोशन इज जनरली कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन। जहाँ से वो स्टार्ट करता है अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको आप इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन कह सकते हैं। दूसरा वर्ड आता है जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑस्किलेटरी ऑब्जेक्ट, जो ऑस्किलेटिंग कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का, एट एनी इंस्टेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द डायरेक्शन इज ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऑब्जेक्ट कितने दूर पे है उसको आप उसका डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। उसके बाद एम्पलीट्यूड, यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट जो होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन से अलग अलग डिस्टेंस पे होगा, उसमें जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको आप उसका एम्पलीट्यूड कहते हो। ठीक है। फिर पीरियोडिक टाइम, तो एक ऑब्जेक्ट को एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको पीरियोडिक टाइम कहते हैं, और एक सेकंड के अंदर कितना वो मोशंस को परफॉर्म करता है उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो दिस आर द जनरली वर्ड्स टू बी हैविंग ऑन फॉर्मेशन। तो उसी में एक चीज हमें समझना, वेव। वेव क्या है? देखिए वाटर के अंदर भी आप ऐसे कॉन्सेप्ट को देखते होंगे कि वेव जनरेट होते हैं। तो वेव कैसे जनरेट होता है, वेव का मीनिंग क्या है? सो मोशन इज अ डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम इज जनरली नॉन एज अ वेव। किसी भी मोशनेबल ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो आप उसको वेव कंसीडर करते हैं। वेव इज नॉट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग अहेड इन अ मीडियम, बट इट इज जनरली इफेक्ट। वेव क्या है? कोई एक स्पेसिफिक मीडियम नहीं है कि जो आगे की तरफ बढ़ेगा, पर वो एक इफेक्ट है। अन डिस्टर्बेंस जो आप क्रिएट करते हैं उसके इफेक्ट की वजह से वो वेव जो है वहाँ पे जनरेटेड होती है। वेव्स जनरली ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर वेव्स जो है वो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है। सो जैसे आप डिस्टर्बेंस आप किसी भी मीडियम के अंदर क्रिएट करते हैं, जैसे वाटर है कि पार्टिकल्स क्या आप इसके अंदर थ्रो करेंगे तो इसकी मीडियम ऑस्किलेट करेंगे, और ऑस्किलेट होगा तो क्या जनरेट करेंगे? वेव्स को जनरेट करेंगे। सो मोशन ऑफ अ डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम इज जनरली कॉल्ड एज अ वेव। ठीक है। चलिए अब हम प्रोपोगेशन ऑफ साउंड के बारे में डिस्कशन करते हैं। साउंड जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जैसे अभी ये ऑइसो फोकस पे हाथ रखो और आप बोल रहे हो तो ये थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा होगा। तो वाइब्रेट जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। ड्रम पे कुछ पेपर्स के टुकड़े रख दीजिए और ड्रम को बीट कीजिए तो उसमें से वाइब्रेट होगा, साउंड जनरेट होगा, वो आपको पेपर्स जो है मूव करते हुए दिखेंगे। So sound is generally produced by the vibrating object. The matter or substance through which sound is transmitted is called medium. जिस मीडियम के थ्रू कौन साउंड को जो लेके मूव करता है, तो इट कैन बी सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम और गैसेस मीडियम। ये ऑलरेडी आपने पहले भी पढ़ा है कि साउंड कैसे सॉलिड मीडियम के थ्रू, लिक्विड के थ्रू, गैसेस के थ्रू ट्रांसमिट होता है। सो साउंड मूव्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर। एक पॉइंट से जनरेट होता है और जहां तक सुन रहे हैं वहां तक वो मूव करता है। So when then object vibrate, it sets the particle of medium around the vibrating. The particles do not travel all the way the vibrating objects to the ear. The particle of the medium in contact with the vibrating object first displayed from its equilibrium position and then exert the force to the adjacent particles. Then it can be processed the continuous medium till the sound reaches to the our ear. ये process के through वो implementation होके sound जो है वहाँ तक हमारे कानों तक पहुँचता है। ठीक है। तो इसमें दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो उसमें दो तरीके के वेव्स आते हैं, एक मैकेनिकल वेव्स आते हैं और एक नॉन मैकेनिकल वेव्स आते हैं। पहले हम समझते हैं मैकेनिकल वेव्स के बारे में, फिर हम डिस्कशन करेंगे नॉन मैकेनिकल वेव्स के बारे में। तो वेव्स विच रिक्वायर अ मीडियम, कोई भी सॉलिड मीडियम चाहे लिक्विड या गैस किसी भी मीडियम का हो, अगर वेव्स किसी भी मीडियम को रिक्वायर करते हैं फॉर द प्रोपोगेशन दैट आर नॉन एज अ मैकेनिकल वेव्स, उसको आप मैकेनिकल वेव्स कहोगे। Like elastic medium is also necessary from the propagation of waves in mechanical में। तो मैकेनिकल के अंदर जो इलास्टिक मीडियम होता है वो काफ़ी रिक्वायर होता है। जैसे सेस्मेसिक वेव्स होते हैं, जिसे अर्थ वाइब्रेट होता है सॉलिड सरफेस के अंदर, वो वेव्स हैं। वाटर वेव्स अकर्स होते हैं लिक्विड मीडियम के अंदर।
साउंड वेव्स क्रिएट होते हैं गैसियस मीडियम के अंदर। तो एक स्पेसिफिक मीडियम अगर जरूरी है तो आप उसको कौन से वेव्स कहोगे, मैकेनिकल वेव्स कहोगे। दूसरे आते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। देखिए, तो जो वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर अ स्पेसिफिक मीडियम फ्रॉम द प्रोपोगेशंस, उसको आप नॉन मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स जो है वो वैक्यूम के अंदर भी प्रोपोगेटेड होते हैं, जिसमें रेडियो वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लाइट वेव्स है, ये सब उसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। तो ये जो पूरा फॉर्मेशंस जो होता है ऑस्किलेटरी मोशंस के अंदर, उसमें भी हमें दो वेव्स और पढ़ने, जिसमें को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं और दूसरे को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स क्या है पहले वो समझते हैं। सो इफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम दैट ऑस्किलेट परपेंडिकुलर, अगर कोई भी पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अगर परपेंडिकुलर ऑस्किलेट होता है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, तो वैसे वेव्स को आप ट्रांसवर्स वेव्स कहोगे। जैसे उसके एक एग्जांपल समझते हैं कि एक रोप जो है कि इफ वन मूव्स अ रोप टाइड विद द सॉलिड सरफेस अप एंड डाउन, रोप को ऐसे पकड़ के अप एंड डाउन मूव करते हो, the waves which will be created that moves perpendicular away from that particular rope is moved, that is called transverse waves. दूसरा आता है longitudinal waves। longitudinal waves के अंदर जो particles of this medium oscillate parallel directions to the propagation of waves, तो इसको आप longitudinal waves कहते हैं। जैसे अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो वो स्प्रिंग विल क्रिएट द वेव्स इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द कंप्रेशन, तो उसको आप longitudinal waves कहते हैं। चलो ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो ट्रांसवर्स वेव्स जो है उसमें अगर हम इम्प्लीमेंटेशन देखो, साउंड वेव्स जो है वो अलग अलग मीडियम्स के अंदर से प्रोपोगेट होता है और अलग अलग तरीके से मूव करता है साउंड वेव्स के अंदर। तो जनरली देखिए कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दैट जनरली ऑस्किलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शंस ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, तो आप उसको ट्रांसवर्स वेव्स कहोगे। जैसे रोप का एग्जांपल दिया, ट्रांसवर्स वेव्स जो ट्रैवल यानी कि प्रोपोगेट होते हैं इन द मीडियम ऑफ थ्रू एंड क्रेस्ट, थ्रू और क्रेस्ट के फॉर्म में कंसीडर होते हैं, वहां से मूव करते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो इसके अंदर होता है उसको क्रेस्ट कहते हैं, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है उसको थ्रू कहते हैं। ये एक फॉर्मेशन होता है ट्रांसवर्स वेव्स का। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर भी इसी तरह के मूवमेंट देखने को मिलते हैं। जैसे ये जो प्रेशर वेरिएशंस जो दिया हुआ आपको फॉर्मेशन के अंदर, वो इसी पे डिपेंड करता है। तो इसमें अलग अलग चीज़ें हमें समझनी होती है कि जो डेंसिटी के अकॉर्डिंग टू जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है साउंड के, वो हमें समझते हैं। देखिए वेवलेंथ जो इससे लॉन्गिट्यूडनल हो या फिर ट्रांसवर्स हो, उसके अकॉर्डिंग टू देखें तो वेव्स के भी कुछ अलग अलग तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें वेवलेंथ ऑफ वेव आता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव आता है, पीरियोडिक टाइम ऑफ वेव आता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव आता है और वेव वेलोसिटी आती है। ऐसे अलग अलग चीज़ें उसमें समझनी होती है। सो पहले हम समझते हैं वेव लेंथ ऑफ वेव। जिसे मैंने आपको फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड आपको ऑलरेडी समझा दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग टू वेव लेंथ के बारे में समझते हैं कि वेव लेंथ कैसे मूव करता है, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। सो पहले हम समझते हैं कि वेव लेंथ ऑफ वेव क्या है। सो ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, जैसे वेव मूव करता है, द डिस्टेंस विच इज ट्रैवल्ड बाय द वेव ड्यूरिंग द वन कंप्लीट ऑस्किलेशंस ऑफ द पार्टिकल्स टू द मीडियम इज कॉल्ड वेवलेंथ। उसको आप उसका वेवलेंथ कहते हैं। इन केस ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स, अगर ट्रांसवर्स वेव्स है तो डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड द थ्रू इज कॉल्ड वेवलेंथ, उसको आप उसकी वेवलेंथ कहेंगे। वेवलेंथ जो है उसको ग्रीक वर्ड लेम्डा से हम डिनोटेट करते हैं। इसका ऐसे यूनिट मीटर में होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग में भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग यानी 10⁻⁻10 मीटर। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर। उसी तरह एम्पलीट्यूड ऑफ वेव आता है कि जब प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स के अंदर जो मैक्सिमम हाइट ऑफ वेव होती है उसको उसका एम्पलीट्यूड कहा जाता है, जिसको स्मॉल या कैपिटल ए से आप डिनोटेट कर सकते हैं। पीरियोडिक टाइम ऑफ वेव क्या होता है कि मान लीजिए द टाइम टेकन ऑफ वेव विच इज ट्रैवल टू डिस्टेंस ऑफ वन वेवलेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इज नोन एज अ पीरियोडिक टाइम ऑफ वेव, जिसको आप टी से डिनोटेट कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव आता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव में देखिए द टोटल नंबर ऑफ वेव्स which passing through the one point in any medium in 1 second is known as a frequency of wave, जिसको आप v से डिनोटेट कर सकते हो। So v जो फ्रीक्वेंसी है f = 1/t भी लिख सकते हैं, t = 1/f, यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया है उसके अकॉर्डिंग टू आप लिख सकते हैं। इसमें एक वर्ड आता है जिसको वेव वेलोसिटी कहा जाता है। So distance traveled by the wave in unit time, the direction of propagation is called wave velocity, यानी कि v = λ/t लिख सकते हैं। दैट इज अ फॉर्मूला वेवलेंथ। इस हिसाब से हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो साउंड वेव क्या है, पहले हम साउंड वेव के बारे में समझते हैं, फिर अलग अलग वेव्स के
के कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट विल डिस्कसिंग अबाउट द साउंड वेव। साउंड वेव कैसे मूव करता है। तो साउंड वेव्स आर जनरली मैकेनिकल वेव्स एंड दे कैन बी प्रोपोगेट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, किसी भी मीडियम के अंदर वो प्रोपोगेट कर सकते हैं साउंड के वेव्स। हाउएवर साउंड वेव्स कैन नॉट बी प्रोपोगेट इनटू द वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर जो है साउंड वेव्स प्रोपोगेट नहीं करते हैं। इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर साउंड वेव्स कैन प्रोपोगेट लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, दोनों में काम कर सकते हैं वो। तो ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स, जब साउंड वेव्स का प्रोपोगेशन होता है, the particles of medium that can be oscillate a direction to the parallel to the sound that can be travel in the type of the longitudinal waves. So sound waves that can be thought of as a series of the compression, जिसको condensations या refraction कह सकते हैं, rearfraction. तो oscillations of these particles of the medium that depend on to the elasticity of the inertia of the particular medium, जिसको inertia of medium भी कहा जाता है। तो इस पे दो तरीके के साउंड वेव्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन, जिसको अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक हम कह सकते हैं। दैट इज जनरली कॉल्ड एज अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक साउंड के हिसाब से हम काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक स्पीड है। तो ये स्पीड जो है मीडियम के अकॉर्डिंग टू हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बाद में डिस्कशन करते हैं, जिसमें इको और वो सब के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो हमें पहले डिस्कशन करना है जिसको हम देखेंगे ऑडिबल साउंड। पहले तो हमें समझना ऑडिबल साउंड। तो किसी भी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, दैट साउंड बिटवीन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के अगर बीच में है, तो इट जनरली प्रोड्यूस द सेंसेशंस ऑन द ईयर्स ऑफ द हेल्दी पर्सन्स। सो द सेंसेशन अलाउ हियर सच काइंड ऑफ द साउंड। वैसे साउंड को आप सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में। The frequency range of 20 Hz से 20,000 Hz is known as the audible range, और इस तरह के साउंड को आप ऑडिबल साउंड कह सकते हैं। जैसे ह्यूमंस के जो ईयर से 20 Hz से लेकर आप 20,000 Hz के बीच के सुन सकते हैं, जिसको ऑडिबल साउंड में हम कंसिडर करते हैं। जैसे आप देखिए कि जैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड जो एयर के अंदर है वो 340 मीटर पर सेकेंड है। एक सेकेंड में 340 मीटर जाती है साउंड। तो रेंज अगर आप देखें कि जो साउंड 20 हर्ट्ज, अपर रेंज जो है 20,000 हर्ट्ज के बीच में अगर आप कंपैरिजन करें, तो 340 डिवाइड बाई 20 करोगे तो 17 मीटर आएगा। 340 डिवाइड बाई 20,000 करोगे तो 0.017 मीटर आएगा। यानी कि उसकी वेलोसिटी 0.017 से लेकर 17 मीटर के बीच की जो होगी उसको आप इजीली सुन सकते हो, जिसको ऑडिबल साउंड कहा जाता है। दूसरा आता है जिसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। तो साउंड हैविंग अ फ्रीक्वेंसी विच इज वेरी लेस देन 20 हर्ट्ज, उसको आप इंफ्रासोनिक साउंड कहोगे। जिस साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी उसको आप इंफ्रासोनिक कहोगे। सिंस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड इज वेरी लेस देन द ऑडिबल फॉर द ह्यूमन ईयर्स, सो ह्यूमंस कैन नॉट बी हियर दिस काइंड ऑफ साउंड। ऐसे साउंड हम सुन नहीं सकते हैं। सो वेव विच जनरली प्रोड्यूस ड्यूरिंग द अर्थक्वेक इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक। अर्थक्वेक के हिसाब से जो होता है उसको इंफ्रासोनिक कहा जाता है। लाइक व्हेल्स एंड एलिफेंट्स कैन प्रोड्यूस द सेम काइंड ऑफ द इंफ्रासोनिक साउंड्स। उसके बाद तीसरा आता है जिसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। तो साउंड हैविंग द फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज और से 20 किलो हर्ट्ज, उसको आप अल्ट्रासोनिक साउंड कहोगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा हो। तो साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक दैट इज मोर देन द ऑडिबल रेंज, सो आल्सो वी कैन नॉट बी हियर दैट काइंड ऑफ साउंड्स लाइक एनिमल्स लाइक बैट, डॉग, कैट, some birds, insect which can produce this kind of the sounds which cannot be heard by the humans. अब अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो अलग अलग जगहों पे यूजफुल है। जैसे हम देखते हैं कि मेडिकल साइंसेस में यूजफुल है, उसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर यूजफुल है, इंडस्ट्रीज के अंदर यूजफुल है, इकोकार्डियोग्राफी के अंदर यूजफुल है। कैसे यूजफुल है वो समझते हैं। जैसे मेडिकल साइंसेस के अंदर फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटिंग द इंटरनल इलनेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो जैसे स्टोन जो गैल ब्लैडर के अंदर होता है या किडनी के अंदर होता है, वो सब जो डिटेक्ट होता है, वो डिवाइस जो है प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासोनिक साउंड, उसके थ्रू हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर डिटेक्टिंग द स्टोन कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन इनटू द वेरी स्मॉल पीसेस विदाउट द सर्जरी विद द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द लेटर दैट फ्लश थ्रू द यूरिन। वो यूरिन के थ्रू बाद में आप उसको निकाल सकते हो। दैट शुड बी डन बाय द अल्ट्रासोनिक मेथड। अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है उसको एग्जामिन कर सकते हैं। जो चाइल्ड जो इम्प्लीमेंटेशन एबनॉर्मली है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं फॉइटस को, उसके लिए अल्ट्रासोनोग्राफी यूज किया जाता है। इकोकार्डियोग्राफी जो होता है, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होते हैं दैट मेड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट
और उससे हमें पता चलता है कि हार्ट्स के अलग अलग ब्लॉक्स और लेवल प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। तो कंडीशन ऑफ हार्ट चेक करने के लिए इकोकार्डियोग्राफी यूज की जाती है। और रेलवे लाइंस के लिए, डेप्थ ऑफ सी, इन सब के लिए भी हम अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज करते हैं। इंडस्ट्रीज के अंदर भी कुछ क्रैक्स है और जो रह गए हैं उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए इकोकार्डियोग्राफी का जो है यूज करते हैं। तो उसी में एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं सोनार सिस्टम, जो आपको लास्ट में दिया होगा, मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ सोनार के बारे में। सोनार सिस्टम, ठीक है। एप्लीकेशंस तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, रिवर्बरेशंस इको के बारे में समझाता हूँ, उससे पहले मैं आपको सोनार सिस्टम समझाता हूँ। देखिए सोनार का मतलब क्या है, दैट इज कॉल्ड साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। सोनार इज अ स्पेशल टेक्निक विच इज यूज्ड इनटू द शिप, शिप्स के अंदर उसका यूज होता है। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड टू कैलकुलेट हाउ डीप are the objects such as like a sunken ships, rocks which are situated into the sea surface, वो जानने के लिए हम सोनार सिस्टम का यूज करते हैं। इन दिस मेथड ट्रांसमीटर जो होता है, ट्रांसमीटर दैट कैन बी फिक्स्ड ऑन द शिप्स एंड विच सेंड्स द अल्ट्रासोनिक वेव्स ऑन टू द सी बेड, वहां पे मूव करते हैं। द साउंड वेव्स दैट हिट द सी ऑब्जेक्ट इन द सी विच रिफ्लेक्ट बैक एंड रिसीव्ड बाय द रिसीवर and filled by the ships. The time t that between the transmitting and receiving of the sound waves measure and calculate the distance of the line of a seabed. So bats also can make use to be see the techniques of flying very dark into the colliding of formations. So इसके वजह से सोनार सिस्टम वहाँ पे यूज होता है। तो अगर हमें टी जो सी का डेप्थ कैलकुलेट करना है, द टाइम टेकन फॉर अ सी वेव्स व्हिच इज ट्रैवल टू सी बेड इज रिसीवर टेकन एज अ 1/2, उसके हिसाब से h इज इक्वल टू v इंटू t/2, उस फॉर्मूला से आप उसकी डेप्थ को कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये हो गया उसके बारे में। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिवर्बरेशंस के बारे में। रिवर्बरेशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं कि रिवर्बरेशंस क्या है। देखिए अभी एंगल जो अलग अलग बनते हैं कि जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के अंदर, जैसे आप देखो कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउंड के अंदर जैसे बनता है ना कि लाइक लाइट ऑफ साउंड ऑल्सो गेट टू बी रिफ्लेक्टेड ऑन द सर्फेस ऑफ सॉलिड लिक्विड, जिससे लाइट रिफ्लेक्टेड होता है, जैसे साउंड भी जो है वो सॉलिड लिक्विड या किसी भी मीडियम पे जाने के बाद वो रिफ्लेक्टेड होता है। सो द एंगल विच इज इंसिडेंट टू द इक्वल ऑफ रिफ्लेक्शंस और मे बी द इंसिडेंट साउंड is normal which is drawn to the at any point reflected having a same plane, एक कॉन्सेप्ट उसका है। तो इसी पे हमें समझना है इको और रिवर्बरेशंस के बारे में। तो पहले हम रिवर्बरेशन समझते हैं। तो रिवर्बरेशन इज क्वाइट डिफरेंट टू इको, इको से काफी अलग है। रिवर्बरेशन ऑफ साउंड दैट टेक प्लेस इफ साउंड गेट रिफ्लेक्टेड एंड रीचेस द सोर्स ऑफ द साउंड इन अ लेस देन 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड से भी कम टाइम होना चाहिए। लाइक फॉर एन ऑडिटोरियम, when a speaker that speaks or maybe some music that can be played, the sound may be spread off ceiling, walls, flooring, etc. that generally create the reflection. Due to this multiple reflection, sound is heard into the auditorium, even the productions of the sound stops. Like even after the speaker has to be stopped to stop speaking, you can hear that words. This phenomenon is called reverberation. इसको आप reverberations कहते हैं। Some reverberations create a good sound effect, but reverberation time exceeds 0.8 second. But in reverberations also we have to be infinite having a successive words. So reverberations time जो होता है वो अलग अलग जो solid material है उस पर से reflect होकर 0.1 second के अंदर वो implement करता है। So that is called as a reverberation. उसके बाद है echo. echo के बारे में हम समझते हैं कि echo क्या है। The repetition of sound that caused due to the reflection of sound waves is known as echo. Okay, like if one shouts in an empty hall or maybe in a hilly areas under the temperature of 20 degrees Celsius, and if the distance between the persons which is shouting and the walls and hills are more than 17 meter, maybe 56 feet, so these persons can hear the echo of his own sound. So in the other words, if the time interval of the original sound and the reflected sound is more than 0.1 यानी कि 1/10 second, so that reflected sound is generally called as a echo. इसको आप क्या कहेंगे, echo कह सकते हैं। तो minimum distance of 17 meter may be vary as per the air temperature, इतना उसका implementation होगा तब आप उसको कह सकते हैं उसके formation में। उसके बाद हमें पढ़ना है इंटेंसिटी के बारे में।
जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया कि साउंड की इंटेंसिटी, जिसमें लाउडनेस ऑफ साउंड एक वर्ड आता है और एक और उसके लिए मेजरमेंट जो होता है वो हम देखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट जनरली डिफाइंड एज साउंड एनर्जी विच जनरली पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन यूनिट एरिया ऑफ यूनिट टाइम, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू साउंड एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया, यानी पावर अपॉन एरिया आप उसको कह सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम दैट इज कॉल्ड पावर। सो यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड एज अ वॉट, उसको वॉट में कंसीडर कर सकते हो, एरिया को आप मीटर स्क्वायर में कर सकते हैं। साउंड का जो इंटेंसिटी होता है वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर के फॉर्मेशन में आप कंसीडर कर सकते हो। उससे में आता है लाउडनेस ऑफ साउंड क्या है, एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द साउंड sources like drum is being played, the loudness of sound is decreased as one moves near the source, the loudness of sound that can be increased. So loudness of sound that depend on the sensitivity of ear of the listener, उस पर depend करता है। For example, sound of some intensity may be very loud to the person, but at the same time it may be not the loud for someone else, because it should be depend on to the intensity of the ears of the listener, ठीक है। लाउडनेस को अगर मेजर करना है तो उसके लिए हम डेसिबल डीबी का यूज करते हैं। डेसिबल इज द कॉमन यूनिट ऑफ द नॉइज, नॉइज का कॉमन यूनिट है जिसको हम डेसिबल कहते हैं। सो ह्यूमन ईयर्स कैन नॉट हियर द साउंड विच इज लोअर देन 0 डेसिबल, और जिसे 0 डेसिबल के अलावा विच इज द इंटेंसिटी ऑफ 10⁻⁻12 उसके हिसाब से होता है। और जनरली इंटेंसिटी ऑफ साउंड ड्यूरिंग द कंजर्वेशन दैट इज इक्विवेलेंट टू द 60 डेसिबल, 60 डेसिबल तक का वो इंप्लीमेंटेशन होता है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। सोनार सिस्टम तो ऑलरेडी मैंने आपको समझा ही दिया, सोनार क्या है। नाउ द लास्ट टॉपिक दैट वी डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए ह्यूमन ईयर इज डिवाइडेड इनटू द 3 मेन पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ऐसे 3 आउटर, मिडल और इनर, ऐसे 3 अलग अलग ईयर स्ट्रक्चर में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। द आउटर ईयर इज कॉल्ड एज अ पीना ऑफ द ईयर, and pinna collects the sound from the outside. This sound that passes through the auditory canal and then reaches to the membrane at the end of the canal, वहाँ move करता है, and this membrane is called as a eardrum, इसको आप eardrum कहते हो। So due to the propagation of sound, when the condensations are formed near the eardrum, eardrum that should be pushed inside, and during the refraction it pushes outside the eardrum that should be vibrates, तो eardrum vibrates होता है, ये आउटर ईयर का काम होता है। उसके बाद मूव करते हैं मिडल ईयर पे। द वाइब्रेशंस दैट मिडल ईयर दैट रिसीव्स आर वेरी मिनिट, एंड द 3 bones which is situated into the middle ear are highly amplify this vibration and transmitted to the inner ears, उसको इनर ईयर तक भेजते हैं। उसके बाद इनर ईयर्स का काम चालू होता है। inner ear that convert this vibration into the electric signal with the help of cochleas, which is called as a coil tube, जिसको cochleas कहा जाता है। This electric signal reaches to the brain, to the auditory nerves and brain signals as a part of sound, तो ऐसे हम sound को सुन सकते हैं, ठीक है। तो this is about the chapters of sound। तो इस चैप्टर के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा है, जैसे मैकेनिकल वेव्स के बारे में आपने पढ़ा, उसके बाद आपने नॉन मैकेनिकल वेव्स के बारे में डिस्कशन किया है, और उसके बराबर ट्रांसवर्स वेव्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है, इंफ्रासोनिक साउंड क्या है, अल्ट्रासोनिक साउंड क्या है, इको क्या है, रिवर्बरेशंस क्या है, अल्ट्रासोनिक साउंड के यूजफुल क्या है, ह्यूमन ईयर कैन नॉट हियर द इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक साउंड क्यों, इसके बारे में आपको समझा है। फिर इको रिवर्बरेशन कैसे जनरेट होता है, उसके अलावा जो साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो मैंने आपको समझाया था। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया है। तो इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड प्लीज रीड केयरफुली दिस चैप्टर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक वेरी क्लियरफुली। When we meet tomorrow, we'll discussing about the new chapter of your syllabus. Students, take care and bye.